بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور نیوز کے ساتھ میں ہوں منظرہ۔ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ اوکاڑا سے رپورٹ کر رہے ہیں میاں سجاد حسین بودلا، اوکاڑا مینیجنگ ڈائریکٹر، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پیف کے احکامات کے مطابق تحصیل اوکاڑا میں سالانہ سپورٹ اور ادبی پروگراموں کا انعقاد۔ شیخ عابد علی صدر میپس کی زیر نگرانی شاندار انداز میں منعقد کیا گیا۔ مسرت ایجوکیشن پروموشن سوسائٹی نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے اپنی انسانی اور سرمایہ کے وسائل کو بروکار لا کر پروگرام کو کامیاب بنایا۔ سوسائٹی کے صدر دیگر ممبران نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ سوسائٹی نے جیتنے والے طلباء طالبات کے لیے قیمتی شیلڈز اور میڈل کا انتظام کیا۔ مزید برآں سوسائٹی نے اپنے آنے والے طلباء طالبات اور اساتذہ کے لیے 2 دن کے کھانے پینے کا انتظام بھی اپنے ذمہ لیا۔ ہم نصابی سرگرمیوں تلاوت، نعت، تقاریر اور کوئز مقابلہ جات، جبکہ کھیلوں میں 100 میٹر اور 200 میٹر ریس، لانگ جمپ، والی بال، ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کے مقابلہ جات کروائے۔ انڈور گیم سپورٹ کمپلیکس اوکاڑا اور آؤٹ ڈور گیمز کے مقابلہ جات چناو اسٹیڈیم اوکاڑا میں منعقد کیے گئے، جس میں پیف سکولز کے لڑکے اور لڑکیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انٹرویو کے دوران شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام لازمی ہونے چاہیے جو نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو نکھاریں۔ 2 دن کے پروگرامز کی آخر میں مہمانان خصوصی خادم اوکاڑا، فیاض ظفر، صدر سٹی پریس کلب، عباس علی جٹ اور دیگر مہمانان خصوصی نے اپنے دستے مبارک سے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ شیخ عابد علی کو اس بہترین اور کامیاب پروگرام کو منعقد کروانے پر بھرپور انداز میں مبارکباد دی۔ آخر میں شیخ عابد علی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مہنگا نواز وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے ہمیں ایسے پروگرامز کروانے کا موقع دیا جس میں بچوں کے ٹیلنٹ کو تحصیل بالترتیب ڈسٹرکٹ اور پھر پنجاب لیول پر اجاگر کر سکیں۔ کامران سلیحلی کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ ڈسٹرکٹ جیل کرپشن کا مرکز کیوں؟ سیالکوٹ اینٹی کرپشن کی کامیاب ریڈ کارروائی۔ عدیل کانسٹیبل ملازم ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ 25,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ مدعی کا کہنا ہے کہ اس کا دوست جیل میں بند ہے۔ وہاں موجود ایک جاوید نامی ہیڈ وارڈن اس کو پریشان کرتا ہے۔ دوست کے کہنے پر اس نے ہیڈ وارڈن سے بات کی، جس نے کہا کہ آپ کو اس کے لیے پیسے دینے ہوں گے۔ عدیل کانسٹیبل بھی اس کے پاس موجود تھا، جس نے کہا کہ عدیل آپ سے باہر آ کر پیسے لے گا، اس کے بعد ہم آپ کے دوست کو تنگ نہیں کریں گے۔ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن سیالکوٹ رانا مبشر کی درخواست عوام سے ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم اگر آپ سے رشوت طلب کرتا ہے تو برائے مہربانی اینٹی کرپشن کو مطلع کریں۔ اینٹی کرپشن آپ کا جائز کام بھی کروائے گی اور ملزم کو گرفتار کر کے بند حوالات کرے گی۔ کرپشن فری پاکستان کے عزم میں ہمارا ساتھ دیں۔ رانا مبشر، سرکل آفیسر اینٹی کرپشن سیالکوٹ۔ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اور نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ دعا فاطمہ بچی گھر کے باہر کھیلتی ہوئی اغوا ہو گئی۔ اے ایس پی سرکل کمالیہ کی احمد اور ایس ایچ او تھانہ سٹی کمالیہ امیر صفدر نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے چند ہی گھنٹوں میں بچی برآمد کر لی۔ 6 بجے شام 15 پر کال موصول ہوئی۔ دعا فاطمہ دختر کامران قوم بلوچ 3 سے 4 سال بعمر سکھنا جنا ٹاؤن عقب لاری اڈا کمالیہ، جو شام تقریباً 4 بجے گھر سے باہر کھیلنے نکلی، جو ابھی تک گھر واپس نہیں آئی ہے۔ کال موصول ہونے پر ایس ایچ او سٹی کمالیہ بما نفری موقع پر گئے اور CCTV کیمرے چیک کیے گئے تو ایک ضعیف نامعلوم عورت اس کو ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ عورت کو تلاش و بسا کر کے بہت رقبہ 187 گاہ بے علاقہ تھانہ رجانہ نجمہ بی بی زوجہ نواز قوم بلوچ مکان سے بچی کو برآمد کیا۔ ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ مورکھنڈا سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ننکانہ صاحب شادی اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق چکن مافیا نے غریب مظلوم عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا۔ مرغی کے گوشت کا ریٹ 470 روپے جبکہ چکن مافیا اس کو 600 روپے میں فروخت کر رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ سے نوٹس کی اپیل۔ مورکھنڈا میں چکن مافیا نے اپنی منمانیاں شروع کر دی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے مرغی کے گوشت کی قیمت 470 روپے ہے اور چکن مافیا اس کو 600 میں فروخت کر رہا ہے۔ عوام الناس کا کہنا ہے کہ پہلے ہی گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور اب مورکھنڈا کی چکن مافیا نے ضلع انتظامیہ کے مقرر کردہ ریٹ خوا میں اڑا دیے ہیں۔ اپنی مرضی کی قیمتوں کے مطابق مرغی کا گوشت مہنگے داموں فروخت کر کے غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ عوام الناس نے ڈپٹی کمشنر ننکانہ تسلیم اختر راؤ سے اپیل کی ہے، یہ جو چکن مافیا دونوں ہاتھوں سے غریب مظلوم عوام کو لوٹ رہے ہیں، ان کو لگام ڈالی جائے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اور نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ سبزی منڈی کمالیہ کے الیکشن میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ صدر کے عہدے کے لیے چودھری محمد شہباز اور طارق منا کے درمیان دلچسپ مقابلات جاری ہے، جس سے انتخابی سرگرمیوں میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ الیکشن مہم کے سلسلے میں چودھری حنیف گجر کی جانب سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں سبزی منڈی کے معروف
धड़े, आरती और मकामी ताजरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दावत में मौजूद तनवीर गुज्जर, बग्गा कंबो, साबर रहमानी और नासर रहमानी समेत मुतअद्दिद बासर शख्सियात ने चौधरी मोहम्मद शहबाज की हिमायत का बाकायदा ऐलान किया। शुरका ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आइंदा इंतखाबात में मजबूत और मंडी के मसाइल की समझने वाली क़यादत सामने आएगी। सब्जी मंडी के मालिक इलेक्शन में मुकाबला मज़ीद दिलचस्प होने की तवक्को की जा रही है और ताजरों की भरपूर दिलचस्पी ने फ़िज़ा को मज़ीद गर्म कर दिया। हैदराबाद MQM के रुकन सिंध असम्बली नासिर कुरैशी की नूरानी बस्ती में कत्ल होने वाले ज़ुबैर जब्बी के घर आमद फातह होने की। इससे कबल ज़ुबैर के कत्ल वाक़े के दिन इसके अहले खाना ने MPA नासिर कुरैशी पर कत्ल के इल्ज़ामात आयद किए थे, जबकि ज़ुबैर के भाई मुज़म्मिल कुरैशी ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें लोगों ने नासिर भाई के खिलाफ गलत गाइड किया, हमने जज्बात में आकर इनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए। कमालिया से खबर शामिल करते हैं। कमालिया अड्डा क्लेरा के करीब चंद माह कबल आने वाले सैलाबी रेले के बायस चीचा बतनी रोड में पड़ने वाला बड़ा शगाफ शहरों के लिए मुसलसल परेशानी का बायस बना हुआ था। मुकामी इंतजामिया ने बिलायाखिर इस शगाफ की बहाली और सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। इसकी वजह से आए रोज़ ट्रैफिक जाम होना मकबूल बन गया है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और मुसाफिर शदीद परेशान। मज़ीद आगाह कीजिएगा मोहम्मद अरशद बाक्सर तमाम तफसीलात से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अड्डा क्लेरा के मकाम पर। कुछ माह पहले जो सैलाबी रेला आया था उसकी वजह से चीचावतनी रोड में जो शगाफ पड़ा था उसको आर्जी तौर पर इंतज़ामिया की तरफ से बंद कर दिया गया था और ट्रैफिक की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी कर दिया गया था। अब उसको दोबारा उखाड़ कर पुख्ता तरीके से बनाया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਬੀ ਰੇਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕਮਾਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਜੀਚਾ ਉਤਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਡਾ ਕਲੇਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਨ ਦੇ ਚੱਕ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸ਼ਗਾਫ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ काम शुरू कर देता है। जी अहले इलाका का कहना है कि आए रोज यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाती थी, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना था। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, ऑन न्यूज़, टोबा टैक्सी। हमारे नुमाइंदे कदीर मेहर समरियाल सियालकोट की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सबा अस्कर अली की ज़ेर सदारत अहम इजलास अवामी सहूलियात और शहरी तरक्की के लिए अहम फैसले, मवेशियों को म्यूनसिपल हदूद से बाहर मुंतकिल करने का फैसला, शहर भर की खराब स्ट्रीट लाइट्स की फौरी मरम्मत, हदायत, स्कूलों में 3000 नए दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि PHA के तहत 10,000 समरियाल में 50 एकड़ पर बड़े पैमाने पर काई का जंगल काम करने का मंसूबा है। बगैर नंबर प्लेट्स के रक्षों पर पाबंदी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म, चीनी के ज़हायर और रोटी के म्यार की खसूसी जांच, कीमतों में बेज़ाब्तियों पर सख्त एक्शन, तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जियो टैगिंग मुकम्मल, शेड्यूल के मुताबिक सफाई और फिल्टर की तब्दीली को यकीनी बनाने की हदायत। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे कदीर मेहर समरियाल सियालकोट की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रर पैराफोर सियालकोट मोहम्मद वकास ने अपने स्टाफ की तरफ से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अयूब बुहारी को तबादला होने की सूरत में शानदार अंदाज में अलविदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट समरियाल से हमारे नुमाइंदे कदीर मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट नोल मोड़ वजीराबाद रोड पर ट्रैफिक का खौफनाक हादसा पेश आया। 2 मोटरसाइकिल सवार आपस में टकरा गए। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह नोल मोड़ वजीराबाद रोड पर खौफनाक हादसा पेश आया। 2 मोटरसाइकिल सवार आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में दोनों शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल सियालकोट मुंतकिल कर दिया। अलबत्ता कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। वतन अजीज़ पाकिस्तान तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। हालात का तकाजा है कि सब अपनी अपनी जगह पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मिलकर अपना किरदार अदा करें। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ज़िला बहावलनगर के ज़िले सीनियर नायब सदर साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद असलम फरीदी ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल निज़ाम मुस्तफ़ा के अमल में नफाज है। जामिया फरीदिया तजवीद कुरान अलवकार कानूनी खरूनाबाद में गुफ्तगू करते हुए पीर इलामा मोहम्मद असलम फरीदी ने कहा कि कायदे मिलत इस्लामिया अलशाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह के मिशन निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए कोशा हैं, क्योंकि खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम में ही इंसानियत की बका और आहरत में कामयाबी है। अब भी वक्त है हम मज़ीद तजुर्बात की बजाय हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आफाकी तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करें।
डॉक्टर नवीद अजमत राना कंट्रोलर साहिवाल बोर्ड ने कहा कि 9वीं और 10वीं क्लास के इम्तहानात में दौर हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक इम्तहानात लिए जाएंगे और इंतहाई शफाफ तरीके से थ्रो आउट मशीनरी से काम लिया जाएगा और जदीद तरीक़ा तालीम के तहत सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उस्ताज़ा की खिदमत ली जाएगी। इनकी सिलेक्शन को भी शफाफ बनाया जाएगा। मज़ीद जानते हैं साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफसल काशिफ से। जी बताइएगा। खरूनाबाद अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला बहावलनगर हाजी रशीद अहमद अवान ने जामिया कासम अलूम फ़कीरवाली के सालाना जलसे में मौलाना मसूद कासम कासमी की खुसूसी दावत पर अपने वफ़द के हमरा शिरकत की। इस मौके पर मेंबर ज़िले कौंसल मौलाना बैदुर्रहमान कासमी ने नहायत वालहाना अंदाज में वफ़द का इस्तकबाल किया और इनकी खुश अहलाकी, तंजीमी मोहब्बत और मेहमान नवाजी का वाज़िया सबूत है। जलसे के इंतज़ामात काबिल तहसीन रहे। स्टेज की तरबियत, नशीस तौर बर्खास्त की बहसन खूबी तकमील, मेहमानों के इस्तकबाल के बेहतरीन इंतज़ामात और मजमूई तौर पर नज़्म व नस्क की मसाली सूरत हाल मुंतज़मीन की शबाना रोज़ मेहनत का मज़र थी। अल्लाह ताला इस कामयाब जलसे को देने मतीन की हिदमत का मुबारक ज़रिया बनाए। मौलाना मसूद कासम कासमी, मौलाना अबैदुर्रहमान कासमी और पूरी टीम को इस कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी हिदमत को कबूल फरमाए और मज़ीद बरक़ात अता फरमाए। अलामा मौलाना सैयदुल सईद ज़िले नायब अमीर, मौलाना अब्दुल रशीद ज़िले नायब अमीर, मुफ्ती मोहम्मद नईम ज़िले डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, हाफिज़ फैसल सदीक ज़िले सेक्रेटरी इतलात, कारी अब्दुल जब्बार ज़िले डिप्टी सेक्रेटरी इतलात खमरा थे। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहर की शहर में जफर बाजार में तेज़ रफ्तार दो मोटरसाइकिलों में टक्कर के नतीजे में एक नौजवान मौके पर जाँ बहक जबकि दूसरा मोटरसाइकिल सवार फरार होने में कामयाब हो गए। निशाहिदीन के मुताबिक जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त वकील सैफ अली कुराई के नाम से हुई है। वकला बरादरी भी अस्पताल पहुँच गई। इतला पुलिस ने लाश को सिविल अस्पताल डहर की मुंतकिल कर दिया। फरार मोटरसाइकिल सवार की तलाश जारी है। जल्द फरार मुलजमान को गिरफ्तार करके असल हक़ाइक़ की तहकीकात शुरू कर दी जाएगी। नाश का पोस्टमार्टम करने के नाश मुर्सा के हवाले कर दी जाएगी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की दबंग कार्रवाई। सांगड़ में मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ जारी हैं। इस सिलसिले में AETO शाहनवाज सरदारी ने अपनी बहादुर टीम के हमरा दलेराना कार्रवाई करते हुए एक बदनाम ज़माना मनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सांगड़ के नवाही इलाके वर्कशॉप चक नंबर 41 में नेशनल बैंक के पीछे ग्राउंड से बदनाम ज़माना मनशियात फरोश ज़िशान अहमद राजपूत वल हाल जावेद राजपूत को सरेआम चर्च फरोख्त करते हुए एक्साइज टीम ने मौके से ही गिरफ्तार किया और 1240 ग्राम आला क्वालिटी की चर्च बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे डिस्ट्रिक्ट जेल सांगड़ मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफिसर शाहनवाज सरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मनशियात हमारे नौजवानों की दुश्मन है। सांगड़ में इस नासूर को जड़ से खत्म करना हमारा मिशन है। आज की कार्रवाई इस सिलसिले की एक अहम कड़ी है। मनशियात फरोश जहाँ भी होंगे हम इन्हें पकड़कर कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। इलाके के मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन ने शाहनवाज सरदारी और एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा है। एक्सीडेंट फरुखाबाद रोड एक्सीडेंट का वाक़या रेस्क्यू फरुखाबाद वाक़या गुरु नानकपुरा फरुखाबाद सरगोदा रोड शेहुपुरा में पेश आया। कलर के मुताबिक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल और वैगन के दरमियान तसादम हुआ। फरुखाबाद तसादम में मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाँ बहक कार मसूल होते रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर ज़रूरी कार्रवाई के बाद नाश लाहिकीन के हवाले कर दी। फरुखाबाद जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 25 साला सजाद वल अनवर सकना डेरा हाजियाँ वाला के नाम से हुई। खबर शामिल करते हैं डहर से हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहर की गन्ने के नरख न बढ़ाने पर काश्तकारों ने गन्ने की फसल को आग लगा दी। गन्ने की कीमतों में इजाफा न होने पर काश्तकार शदीद परेशान। मकामी ज़मींदार माजिद नामी शख्स ने गन्ने की तैयार खड़ी फसल को आग लगा दी। वीडियो वायरल। काश्तकारों का मौक़िफ़ मुनासिब नरख न मिलने तो नुकसान बर्दाश्त करना मुश्किल। गन्ने के फी मन का रेट 600 मुकर्रर किया जाए। काश्तकार दूसरी जानब ताहाल क्रशिंग सीजन का आगाज नहीं हो सकता। दूसरी जानब ताहाल क्रशिंग सीजन का आगाज नहीं हो सका।
पाक वतन में 13 साल लड़के के साथ उबाश नौजवानों के असले के जोर पर बदफेली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश। ऑफिसर मुबीना मुसलमान के साथ सासबाज हो गया। थाना मलका हांस के इलाके कोट हुक्म सिंह में गुर्बत से तंग 13 साल अरसलान घर से मजदूरी के लिए निकला था। चारों उबाश असला के जोर पर इसे फस्तों में ले गए और बदफेली करते रहे। मुतासरा बच्चे का कहना है कि 2 मुसलमान ने बदफेली की, जबकि 2 मुसलमान वीडियो भी बनाते रहे, जिसकी बिना पर इसे कई रोज तक हरासा किया जाता रहा। थाना मलका हांस पुलिस ने वालिद की मदयत में 4 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वर्षा के मुताबिक तफ्तीशी ऑफिसर मुलजमान के साथ सासबाज है। मुलजमान दंदनाते फिरते हैं, हमें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं, आला हुकाम नोटिस लें। मेरे बच्चे अरसलान नाल ज्यादती हुई है, मैंने परचा करा दिता है। अंबूरी जमानतां ते मुलजम फिरदे ने ते धमकियां ला रहे ने। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ अपील है। मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।